اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید ایک منصب پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کا دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت یہ دنیا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والے کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے علاقاروں کے بارے میں بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جائے شہادت پر اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو ہوا، اپنے بہادر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین اپنے 18 بیلیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذوالحجہ آپ کو کوفہ والا کے عہد شکنی اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا مسلم بن عقیل شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ام سلمہ کو حکم دیا تھا اور کہا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت ہمراہ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جس سے وہ یہاں آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل کو، جن نے آپ سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کرو اور آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو بار بار آپ کو خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف لالت کی وجہ سے آپ کے چچا زاد کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ کوفہ کی گلیوں میں بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی شہادت کا صدمہ اور کوفہ کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور مقصد اتنا
इतना बड़ा था, आप पीछे हट नहीं सकते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोफा से सैकड़ों खतूत मिल चुके थे। उनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील के हाथ जो खत भेजा, उसके अल्फाज कुछ यूँ थे। आपने फरमाया, मैं अपने ख़ानदान के सब बाअतमाद चचाजाद भाई आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि मुझे वो आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर उसने मुझे ये ख़त कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खतूत लिखे तो मैं आपके यहाँ आऊँ। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर यकीन रखता है और अदल कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दे। लेकिन अफसोस, सफ़ीर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूँ थी। सबसे आगे पहला खैमा हज़रत अब्बास का था। हज़रत अब्बास का नाम आते ही जो अल्फाज जहन में आते हैं वो है वफा, सच्चाई और बहादुरी और हक पर डट जाना। ये ऐसे शहीद हैं जो इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी भी कहलाते हैं। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन से हैं। हज़रत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज मुहर्रम उल हराम को इमाम की फौज के आगे पड़ाव डाल चुके थे। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से बैयत उठाता हूँ, आप आज़ाद हैं, जाना चाहे तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब उसके तमाम इकदाम पूरे और जिसका दीन इस्लाम शामिल नहीं हो सकता था। लिहाजा आपके पास दो रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्ने ज़ियाद का मकसद कोफा से हज़रत इमाम हुसैन बुलवा कर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनवीदी हासिल कर सके। रिवायात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन 72 अफराद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को बहुत बड़ी फौज का लश्कर लेकर कोफा से रवाना हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ यजीदी फौज के मज़ाकरात जारी थे। 7 मुहर्रम उल हराम यजीदी फौज ने ताकत के नशे में मस्त होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम भेजा, आप अपने खैमे पानी करीब से उठा लें, और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया। हज़रत इमाम ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर लिया कहीं बाद में बिना कहें कि हज़रत इमाम हुसैन और यजीदी फौज में तनाज़ा पानी का था और जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने साहब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब पानी प्यास से तड़प रहे थे। लोगों ने पानी तकाजा किया लेकिन यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। बच्चों से ज्यादा दीन इस्लाम की फिक्र थी, लेकिन जालिमों के हाथ इक़्तिदार आ गया है। ये लोग ज़माने जहलियत से ज्यादा खतरनाक और जंगजू थे और इमाम किसी सूरत यजीद के हाथ बैयत करने को तैयार ना थे। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कोफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी तौर पे तैयार ना हुई और वो जानवरों की तरह ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, आप या तो बैयत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। 9 मुहर्रम उल हराम को करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक 9 मुहर्रम उल हराम को यजीद की फौज ने मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौज के 72 जाननिसार जंग करने के लिए करबला पहुँचे। शिमर ने आते ही अपनी आयारी और मकारी का वार करना चाहा और उसने हज़रत अब्बास और उनके भाइयों अमान नामा भेजा कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाइए, आपको अमान है। शिमर ने कहा, आपकी वालिदा मेरे कबीले से है
इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको आपके भाइयों समेत अमान है। आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। हजरत अब्बास नाम ही वफा का था। वो कहाँ ऐसी बातों पर यकीन रखते थे या उसकी बातों में आके अपने भाई को छोड़ देते। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास ने शिमर को कहा, ऐ मालून, अपनी नापाक जबान से मेरी माँ का नाम मत लो। उनकी तरबियत और आज मैं यहाँ पर हूँ। 9 मुहर्रम उल हराम की रात हजरत इमाम हुसैन को इल्म हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के लिए तैयार है। आपने अपने तमाम सहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे चला जाए। दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रिवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन बैयत ख़त्म करवाती और कहा कि जो जाना चाहे जहाँ वो चला जाए। कुछ देर के बाद आपने बावफा भाई साथी को कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो। यानी हजरत इमाम हुसैन को यकीन था कि मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। 10 मुहर्रम उल हराम सूरज तलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत रात जाग कर गुजारी थी। सब प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम की शाम हजरत इमाम हुसैन के हुक्म से हजरत अब्बास अपने चंद ताबा के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए 3 अफरात पानी का मशक भर कर लाए थे, लेकिन 10 मुहर्रम यजीदी फौज ने इतला पड़ चुकी थी और शिमर रास्ते में आ गए। प्यासे बच्चों की डूबती चीखों से माहौल को दर्दनाक बना दिया था। हजरत इमाम हुसैन 4 साल बेटी हजरत बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हजरत अब्बास, हजरत बीबी सकीना और हजरत असगर अली के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशक अपनी पुश्त पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन की इजाजत से पानी लेकर रवाना हुए। यजीदी दुश्मन घाट लगा कर बैठे थे। अलीजादी की प्यास से बुरी हालत थी। हजरत अब्बास यजीदी फौज को पीछे धकेलते और आगे बढ़ते रहे, मगर यजीदी फौजों ने हजरत अब्बास के दोनों बाजू काट दिए और आपको शहीद कर दिया। करबला के सारे जान निसार आप पर कुर्बान कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन इन जालिमों को आखिर तक नसीहत करते रहे कि ए जालिमों, क्यों अपने लिए जहन्नम खरीदते हो? मगर आपकी किसी ने एक ना सुनी और एक एक करके आपके सारे साथी शहीद हो गए। बिलाखिर आप लड़ने के लिए करबला में मैदान में उतरे और यजीदी फौज सफ़ें की सफ़ें उलट दी थीं। हजरत इमाम हुसैन कहर बनकर यजीदी फौज पर टूट पड़े। 10 मुहर्रम उल हराम असर की नमाज का वक्त हुआ तो आप घोड़े पर से उतरे, गरम रेत से तयम्मुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज बुज़दिल सिपाही जो करीब मंडला रहे थे और हमला करने के लिए जुर्रत नहीं करते थे, हजरत इमाम हुसैन नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला कर दिया और चारों तरफ से आप पर तीरों की बारिश कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन तीरों की तकलीफ का अंदाजा नहीं था। यजीदी बदबख्तों शायद मालूम न था कि ये अली ज़ादा है और हजरत अली भी नमाज में मशगूल थे। इस तरह खुदा की याद में डूब जाते कि तकलीफ का अंदाजा भी ना होता। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सजदे में गए तो शिमर ने अपनी तलवार के एक ही वार से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पर बुलंद कर दिया। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सारा मंजर देख रही थी। खैमों से बीबियों की रोने की आवाजें आ रही थी तो यजीदी फौजियों ने खैमों को आग लगा दी। खवातीन के सरों से दुपट्टे छीन लिए गए, चादरें छीन ली गई और सबको कैदी बनाकर यजीद के दरबार पेश कर दिया। मैदान करबला में ऐसा कौन सा जुल्म था जो अहले बैत पर नहीं हुआ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।